ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے اور اس مقدس مہینے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا ہے، ٹھیس پہنچی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر 3 مسلمان راستے پر جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، اور بجرنگ دل کا ایک لیڈر اپنی گاڑی کو روکتا ہے، وہ غنڈہ اپنی بائک سے اترتا ہے اور ان تینوں مسلمانوں کو بے دردی سے مارتا ہے، ان کی ٹوپی کو اترواتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ مسلمان چپ چاپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جواب تک نہیں دیتے، کچھ بولتے نہیں۔ اور اب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر جو تکلیف ہو رہی ہے، جو ٹھیس پہنچ رہا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یوپی پولیس نے اس غنڈہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے خلاف صرف چالان کاٹا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو ذرا اب دیکھیے اور سنیے۔ چھوڑو بڑے بھائی، اور چھوڑو بیٹا، چھوڑو 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 اور چھوڑو چھوڑو بیٹا، ارے رہنے چھوٹو رہنے ہرا چھوٹو چھوٹو کیا سمجھا دیجیے آیا چھوٹو جدا آدھا کر چل جاندے اٹھا آدھا کر اٹھا آدھا کر اٹھا ارے اٹھا اٹھا چل جاندے ارے چل جاندے۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، آپ نے سنا، اور اس ویڈیو کے بہت سارے پارٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ اتر پردیش کے بدایوں کا ہے۔ اکشے ٹھاکر نام کا بجرنگ دل کا غنڈہ ہے، وہ راستے سے گزر رہا تھا، یہ سڑک چوری ہے اور 3 مسلمان راستے سے گزر رہے تھے۔ کسی نے بھی ان کی بائک کو نہیں روکا، کسی کی وجہ سے بھی اس کو راستے میں جانے میں ذرہ برابر ڈسٹرب نہیں ہوا۔ کشادہ سڑک ہے، آسانی سے راستہ کاٹ کر جا سکتا تھا، لیکن ان تینوں کے قریب پہنچ کر یہ ہرن بجاتا ہے، اور جب وہ کنارے سے جا رہے تھے، راستہ خالی تھا، یہ راستے سے گزر سکتا تھا، اس کے باوجود وہ تینوں کنارے سے گزر رہے تھے، ان کے پیچھے جا کر یہ ہرن بجاتا ہے، اور جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تبھی یہ اپنی گاڑی کو، اپنی اسکوٹی کو روکتا ہے، اور اس کے بعد اتر کر ان تینوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے، مسلمان ہونے کا طعنہ دیتا ہے، ٹوپی اتارنے کو کہتا ہے، اور اس محلے کی جو بھیڑ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس منظر نے کلیجوں کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت منڈپم میں ایک پروگرام ہوا، اور حکومت نے، کلچرل منسٹری نے 63 لاکھ روپے کی فنڈنگ کی تھی سناتن سنستھا کو ایک پروگرام کرنے کے لیے، جس پروگرام میں مسلمانوں کے قتل عام کا، مسلمانوں کی جنوسائیڈ کا، مسلمانوں کی گھر واپسی کا، مسلمانوں کو غدار ٹھہرانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس پروگرام میں یہ طے ہوا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے، کیسے مسلمانوں کو پریشان رکھنا ہے، کیسے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کرنا ہے۔ حکومت کے فنڈ سے ہونے والے پروگرام میں یہ منصوبہ بنایا گیا۔ پچھلے دنوں موہن بھاگوت نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کی گھر واپسی کرانی ہے یا مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ اسم کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما نے ویڈیو جاری کر کے باضابطہ مسلمانوں پر گولیاں چلائی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بغیر کسی وجہ کے بجرنگ دل کا غنڈہ جس کا نام ہے اکشے ٹھاکر بدایوں میں مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ مسلمانوں کو روزانہ مارا جاتا ہے، روزانہ دیش میں کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کی موب لنچنگ کی خبریں سامنے آتی ہے۔ ملا ٹائمز کا نمبر پبلک میں موجود ہے، اور ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ٹویٹر پر لوگ میسج کرتے ہیں، انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں کہ یہاں کسی کی موب لنچنگ ہوئی ہے، کہیں کسی کی ہتیا ہوئی ہے، بغیر کسی وجہ کے مار دیا گیا۔ لیکن وہ جو خبریں سامنے آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے، کبھی
गाय का गोश्त रखने का इल्ज़ाम लगाया जाता, कभी गाय को चराने का इल्ज़ाम लगाया जाता, कभी कोई और, यानी कोई ना कोई छोटा सा झूठा आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस मामले को देख लीजिए, बगैर किसी वजह के ही अक्षय ठाकुर गुंडागर्दी की तमाम लिमिट को क्रॉस कर जाता है। और इस अक्षय ठाकुर को अगर गुंडा ना कहा जाए, इसको आतंकवादी और दहशतगर्द ना कहा जाए, तो फिर क्या कहा जाए? मुसलमानों को पकड़कर जेल में रखा जाता है और उसका लिंक बताया जाता है आईएसआई से, दाइश से, अलकायदा से, दहशतगर्द तंजीमों से। लेकिन इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? अक्षय ठाकुर से बड़ा आतंकवादी और कौन हो सकता है, जो मुसलमानों को मुसलमान होने की बुनियाद पर, उनके धर्म के नाम पर मार रहा है और अभी तक इस पर एनएसए नहीं लगाया गया, यूएपीए नहीं लगाया गया। ट्विटर पर अब बड़े बड़े एक्टिविस्ट इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अक्षय ठाकुर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है कि यूपी में चल क्या रहा है। अरे कोई पहला वाक़या नहीं, 2 दिन पहले की खबर है। मिलर टाइम्स की जो शॉर्ट फॉर्मेट न्यूज़ आती है, वहाँ इस खबर को बताया गया था कि दिल्ली में नंदनगरी में एक इलाका है, वहाँ 35 साल के अमरुद्दीन नाम के एक मुसलमान को मार दिया गया और कोई वजह नहीं। उनको खबर मिलती है कि उनके बेटे की दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है और जब बच्चों की आपस में लड़ाई चल रही थी और अमरुद्दीन बच्चे को बचाने जाते हैं, बच्चों की लड़ाई को ख़त्म करने जाते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब कुछ लोग फायरिंग करके अमरुद्दीन को हलाक कर देते हैं, मार देते हैं। और अभी तक इस मामले में भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह के वाक़यात लगातार अब सामने आ रहे हैं। पहले कोई बहाना होता था, आरोप और इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन अब बग़ैर बहाना के ही दिन दहाड़े मुसलमानों को मारा जा रहा है, मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये वीडियो है दिल्ली की। दिल्ली के एक इलाका में 2 मुसलमान लड़कियां गुजर रही थी। वहाँ पर एक बंदा आता है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है और उन मुसलमान लड़कियों से पूछता है कि तुमको मालूम है कल क्या है? वो लड़कियां कहती है नहीं मालूम। वो लड़का ताज्जुब का इजहार करते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम कल क्या है? कल शिवरात्रि है। वो लड़कियां बोलती है ठीक है, शिवरात्रि है तो है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरी दिलचस्पी नहीं। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि तुम हर हर महादेव बोलो। वो लड़कियां कहती है हम मुसलमान हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हर हर महादेव नहीं बोल सकती हूँ। अब इस वीडियो को देख लीजिए। क्या आपको पता है परसों क्या है? बताओ। आप इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो? यूरोप से आए हो? पता नहीं, आप बता दो। शिवरात्रि यार। अच्छा, नहीं बता जा? नहीं मुझे नहीं। अरे चलो अब बोल दो हर हर महादेव। अरे मुस्लिम हूँ मैं। तो क्या हो गया, महादेव का नाम ही तो है। चलो बाय कर दो, बाय। ओके। ये जो पूरा मामला है, लड़का लड़कियों को छेड़ रहा है, राह चलती लड़कियों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये छेड़खानी का मामला है और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। दिल्ली पुलिस सो रही है, जो वुमेन कमीशन है वो सो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के जबलपुर से और जबलपुर का ये जो मामला सामने आया है, जिस तरह मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ पढ़ने से रोका गया, मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में बजाया गया और उसके बाद जब वहाँ दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो उल्टा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही एक्शन लिया जा रहा है। आगे मैं आपको पूरी तफसील बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले उम्मा सेवा के बारे में ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं, इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में। और ये मंसूबा आपके ताउन और सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसके ज़रिए आप अपनी ज़कात की, सदक़े की रकम हम तक भेज सकते हैं और आपकी भेजी हुई रकम गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी।
तो आपने देखा उम्मा सेवा की इस वीडियो को, और ये बहुत ज़रूरी है। उम्मा सेवा को आप भी सपोर्ट कीजिए। उम्मा सेवा लगातार गरीबों में, ज़रूरतमंदों में इमदादी सामान तक़सीम कर रहा है और इसको हम सब के सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में एक इलाका है सरोही। सरोही में मुसलमान भी है और हिंदू भी हैं, और वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ मस्जिद है और उसके सामने मंदिर है। तो मस्जिद और मंदिर वहाँ पर आमने सामने हैं, और सरोही में हमेशा वायलेंस होने का, दंगा होने का इम्कान रहता है। और ऐसे इलाकों में पुलिस की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रखना। अब 2 दिन पहले की बात है, मंदिर में दुर्गा की आरती उतारी जा रही थी, और दुर्गा की जब आरती उतारी जा रही थी, उधर मस्जिद में तरावीह की नमाज अदा हो रही थी। और इस प्रोसेस के दौरान मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज़ को तेज़ कर दिया गया। आम दिनों में मंदिर के लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है, उससे वॉल्यूम को कई गुना बढ़ा दिया जाता है, और इसकी वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वालों को, तरावीह पढ़ने वालों को परेशानी होती है, डिस्टर्ब होती है। वो मंदिर की इंतज़ामिया के पास आते हैं और मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ आप लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जितना आम दिनों में वॉल्यूम रहता है उतना ही कर लीजिए। लेकिन मंदिर की इंतज़ामिया नहीं सुनती है। मंदिर में जो लोग हैं वो सीरियस नहीं लेते, नहीं सुनते हैं, बल्कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को और तेज़ कर दिया जाता है। मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया जाता है। मस्जिद के सामने जाकर गाना बजाया जाता है, डांस किया जाता है, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, और मुसलमानों की तरफ से बार बार कोशिश की जाती है मामला को काबू करने की, कंट्रोल करने की। लेकिन मंदिर वाले जोश में रहते हैं, वो काबू में नहीं आते हैं, वो आवाज़ को कम नहीं करते हैं। जब मस्जिद वालों की तरफ से, नमाजियों की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, मुतालबा किया जाता है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ को, वॉल्यूम को कम कर लीजिए, तो ये लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं, और धमकी दी जाती है मस्जिद वालों को कि तुम्हारी मस्जिद यहाँ पर नहीं रहने देंगे, हम अपनी वॉल्यूम को, हम अपनी आवाज़ को कम नहीं करेंगे। और फिर मस्जिद पर पथराव हो जाता है, मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, नमाजियों को चोटें आती है। और रद्द अमल में, बचाव में, मस्जिद में जो लड़के मौजूद थे वो भी पथराव करते हैं। मस्जिद की छत पर जाकर वो पथराव करते हैं, और दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू होता है। फिर पुलिस आती है, किसी तरह हालात को काबू में किया जाता है, वहाँ कर्फ्यू लगाया जाता है। और इस वक्त मिला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 49 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है। पुलिस लगातार रेड मार रही है, छापेमारी का सिलसिला जारी है, और ख़बरें ये सामने आ रही है कि वन साइडेड गिरफ्तारी की जा रही है। पत्थरबाजी की शुरुआत दूसरे ग्रुप की तरफ से हुई। इस हंगामा की शुरुआत दूसरे ग्रुप ने की, माहौल को ख़राब दूसरे ग्रुप ने किया। जो आम दिनों का रूटीन था उसके ख़िलाफ़ जाकर मंदिर वालों ने किया, और उन्हीं लोगों ने दंगा भड़काया, उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी की शुरुआत की। लेकिन अब पुलिस दूसरी तरफ से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर रही है। मीडिया में मुसलमानों का कसूर बताया जा रहा है, गोदी मीडिया में मुसलमानों को दंगाई बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और इस तरह के वाक़यात कंटिन्यू पेश आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है, गरीबों तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए, रमज़ानुल मुबारक में हाजतमंदों की हाजत को मुकम्मल करने के लिए उम्मा सेवा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, जिसके तहत 1000 से ज़्यादा फैमिली को इफ्तार किट्स तकसीम पहुंचाया जा रहा है। स्क्रीन पर QR कोड और अकाउंट नंबर मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।